So let's do the paper discussion. See, this was the first question. Question क्या था कि two bodies of masses 4 kg and 6 kg are tied to the ends of a massless string. The string passes over a pulley with its which is frictionless. The acceleration of the system in terms of acceleration due to gravity. भाई 6 kg है 4 kg है 6 kg वाला जो मास है ज्यादा हैवी है तो ये पूरा ब्लॉक नीचे जाएगा और ये टेंशन टी है यहाँ पे इस पे 4g नीचे लगेगा और टेंशन टी ऊपर लगेगा 6g ज्यादा वेट है इसका देखो एक्सेलरेशन ए नीचे इसका एक्सेलरेशन ए ऊपर तो अगर इसका इक्वेशन लिखोगे पहले तो 6g माइनस टी इज इक्वल टू 6a हो गया और दूसरा इसका लिखोगे तो t माइनस 4g इज इक्वल टू 4a हो गया ऐड कर दो माइनस टी प्लस टी कट गया तो ये क्या हो गया 6g माइनस 4g इज इक्वल टू 6a तो a इज इक्वल टू 60 माइनस 40 20/6 या g के टर्म्स में निकालना है तो 2g/6 विच इज इक्वल टू एक मिनट 6 + 4 10a हो गया सो 2g/10 विच इज इक्वल टू g/5 तो ये जो वैल्यू है हमारा g/5 होगा ऑप्शन बी था इसका आंसर ठीक है ये सारे देखते रहो और जहां पे नहीं समझ में आए वहां पे रोक के पूछ लेना कि सर ये वाला दोबारा बता दीजिए दूसरा what you need to do you need to analyze also कि what mistake you did in your paper okay the purpose of discussing the question paper is to discuss your मतलब your approach and what actual approach should be okay Betsy, what happened? Your paper was also not very good. So, what was the matter? The preparation was not good, the revision was not there, or physics is going out of your ambit? So it was a little tough for me. Okay. So, this was the first time. The purpose of the test is always to self analyze do the self analysis of your preparation. So I saw that you guys only attempted 120, 130 questions. So there were 180 questions. So there is one issue of time management which I can see directly, and other issue which I see is we need to put in more efforts definitely. So the efforts required is right now what you are putting in, and what is required is there is a gap there. You have to fill that gap. So I was talking to Satpreet also. We need to put in at least 9 hours of study, self-study, if we are, aiming at something, getting into a getting at a good medical college. Okay. So, anyways, in India, it is that competition is very tough in terms of NEET. So, you need to score at least, somewhere around 570, 580 marks if you want to get into a government medical college. In a private medical college, still, 450 or 400 marks is enough, but the fees is very high. So what is required, is put in your efforts, put in your best efforts, what you can do, and in the next test, try to fill the gaps and try to perform better than what you have done. So Satpreet को भी मैंने बोला I am telling it to you also, target 400 marks next time. So every test try to improve your score. So this test you were around 297 or 300, we can say. So next test try to score 400 for sure. Okay. So and 100 marks is not something which you cannot get. 25 more questions if you do correct, you will get 100 marks. So 25 question means 10 question more in 10 15 question more in biology, and 5 question more in chemistry and physics. So if you do that, that is doable. That's not something which you cannot do, because you guys have already done 11th and 12th, so this is something which you can achieve. So try to do it next time. Okay. Okay, Betsy. Yes, sir. We'll put in Okay. efforts, more efforts this next time. Yes, sir. Sure. Sure. Every day we should be putting more efforts. Uh,
Yeah, Satpreet, that's what I analyzed your paper. I saw your paper, everything. I analyzed it ki out of 15 you have done 12 correct and only 3 were wrong. So either matlab I thought whether there is some time, there was some time management problem, or secondary it may be that you were very cautious attempting the question कि कहीं गलत ना हो जाए तो उसी को करें जो पूरी अच्छी तरीके से आता है, ये भी होता है। तो दोनों वजह हो सकती हैं, तो वो मुझे लगा, मैंने इसलिए डिस्कस किया तुम लोग से, मैं समझूं कि क्या इशू है। देखो, ऑल सेड एंड डन, व्हाट इज मोस्ट रिक्वायर्ड इज डेली प्रैक्टिस। थोड़ा डेली प्रैक्टिस और करोगे ना, स्पीड भी बेटर होगा, टाइम मैनेजमेंट भी एग्जाम में बेटर होगा। अगली बार से प्लानिंग अच्छे से करके चलना कि अगर तुम्हारे 180 क्वेश्चन है तो 180 क्वेश्चन में देखो, ये मॉक टेस्ट होता क्यों है, प्रॉपर प्लानिंग के लिए। 45 फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया और 90 बायो हो गया। तो तुम्हारा जो अटेम्प्ट का जो तरीका होना चाहिए, व्हाट आई अंडरस्टैंड, बेस्ट वे इज टू अटेम्प्ट बायोलॉजी फर्स्ट। व्हाई? बिकॉज इन बायो यू डोंट हैव टू सॉल्व एनीथिंग, आइदर यू नो द आंसर और यू डोंट नो द आंसर। ट्राई टू डू इट इन 1 hour, okay? So all 90 questions you should be attempting in 1 hour, and then you can do either physics or chemistry depending on your forte। जो ज्यादा तुम्हें अच्छा लगता है वो पहले अटेम्प्ट करो, है ना? सो अगर केमिस्ट्री ज्यादा अच्छा है तो इसको पहले अटेम्प्ट करो, अगर फिजिक्स ज्यादा अच्छा है तो पहले इसको अटेम्प्ट करो, एंड देन आफ्टर बायो यू कैन आइदर स्विच टू फिजिक्स और केमिस्ट्री, एंड स्टिक टू योर टाइम। कि 1 hour देना है तो 1 hour ही देना है, उससे ज्यादा नहीं देना है। अगर आप अपने टाइम को स्टिक करोगे तभी आप उसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है? चलिए, we'll discuss anyways all the questions. So your approach should be something which you have to work on. Let's go to the next one. The time dependence of a physical quantity P is given by P is equal to P naught e to the power minus alpha t square. So this is P is equal to P naught e to the power minus alpha t square, where alpha is a constant and t is a time. The constant alpha is, अब देखो कोई भी जो पावर होता है ना एक्सपोनेंट का, that is always dimensionless. So this whole thing should be dimensionless. इसका कॉन्सेप्ट यही है। The power of an exponent function, you can write it, the power of an exponent function is always dimensionless. So if this is dimensionless, means see, alpha t square has no dimension, okay? नो डायमेंशन कब होगा? जब अल्फा का डायमेंशन और टी स्क्वायर का डायमेंशन आपस में कैंसिल आउट हो जाए, राइट? सो अल्फा इज इक्वल टू 1/t स्क्वायर का डायमेंशन, इन दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए, तभी तो ये नो डायमेंशन होगा। तो 1/t स्क्वायर का डायमेंशन मतलब t रेज टू द पावर -2, तो इसका डायमेंशन क्या होना चाहिए? t टू द पावर -2। सो अल्फा का डायमेंशन t टू द पावर -2 होगा। Is this clear to everyone? So these are the concept basically you should understand. I did it by log. अच्छा, वो लॉग करने की जरूरत नहीं थी, ये बस सिंपली ये कॉन्सेप्ट ही होता है कि कोई भी एक्सपोनेंट फंक्शन जो होता है ना वो डायमेंशनलेस होता है। यहाँ देखो लिखा भी अल्फा टी स्क्वायर मस्ट बी डायमेंशनलेस। सो व्हाई? बिकॉज But my answer was still same. हाँ जी बेटा, My answer was still same. yeah, it will be same. You will take a log, you will get the same thing. When you take log on both the side, this becomes log p, and this becomes इसका log p to the base e अगर कर रहे हो तो this will become basically 1/1 alpha t square log of p naught। अब ये देखो, इधर ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो इसका भी जो डायमेंशन है वो कांस्टेंट होना होगा, इसीलिए अल्फा का डायमेंशन 1/t स्क्वायर होगा, है ना? इसको ऐसे भी कर सकते हो, करने में कोई
गलती नहीं है. Now this next question, third question. Two blocks A and B of masses 3m and m respectively are connected by a massless and inextensible string. So they are connected by, this string is massless and inextensible. Iska mass 3m, iska mass m. The whole system is suspended by a massless spring as shown in figure. The magnitude of acceleration of A and B immediately after the string is cut are respectively. अब हम लोग को ना यहाँ पे जब स्ट्रिंग को कट करेंगे, मासलेस स्प्रिंग है ना, आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट, सो हम लोग क्या करते हैं कि अगर आप यहाँ पे स्ट्रिंग को कट करोगे, ये वाला जो स्ट्रिंग को, तो पहले तो जब ये नॉर्मल है ना, स्ट्रिंग कट नहीं कर रहे हैं, उस समय देखो यहाँ पे 3m वाले का हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं. सो नीचे 3mg लगेगा, टेंशन T लगेगा जो कि इसको नीचे पुल कर रहा होगा, और ऊपर kx हो गया. तो हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, बिफोर द स्ट्रिंग इज कट का इक्वेशन लिखेंगे, kx इज इक्वल टू t प्लस 3mg, राइट. ये हमारा इक्वेशन हो गया, जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे. और उसके बाद हम लोग इसका, ये जो नीचे वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ऊपर t हो गया, नीचे mg हो गया, इक्विलिब्रियम में t इज इक्वल टू mg हो जाएगा. तो अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं. t का वैल्यू यहाँ से इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो kx इज इक्वल टू 4mg हो गया, राइट. ये फर्स्ट इक्वेशन. अब आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट, t क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट. तो t अगर 0 हो गया यहाँ पे, तो अब क्या है, kx माइनस 3mg इज इक्वल टू 3m है ना. तो बेसिकली तुमने क्या किया, यहाँ पे इस स्ट्रिंग को कट कर दिया, इसको कट कर दिया, इसको कट किया, तो ये जो 3m वाला है, अब यहाँ पे फोर्स kx है और नीचे 3mg है. मतलब इसका अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं 3m वाले का, तो ऊपर एक फोर्स kx लग रहा है, नीचे 3mg लग रहा है. टेंशन तो खत्म हो गया क्योंकि यहाँ पे हमने इसको कट कर दिया है स्ट्रिंग को, है ना. तो अब बिकॉज initially kx was equal to 4mg, but now only 3mg force is acting downward, so kx is more, so there will be an acceleration upward for this 3m block. And what will be the acceleration? Acceleration is equal to net force by total mass 3m. Okay, so 3m into acceleration A, net force upward is kx minus 3mg. kx कितना था, 4mg के बराबर था, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो 4mg माइनस 3mg बाई 3m, सो दिस इज mg बाई m, और ठीक है mg बाई 3m, दैट इज g बाई 3. एक्सेलरेशन इज g बाई 3 अपवर्ड. और ये छोटे वाले मास का एक्सेलरेशन क्या होगा, g डाउनवर्ड, है ना, क्योंकि अब तो ये फ्री फॉल होगा ना, जब कट हो कर दिया तुमने, तो ये फ्री फॉल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से नीचे फॉल करेगा. तो एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी दोनों निकालना है. ए का एक्सेलरेशन g बाई 3 अपवर्ड है, और जो बी का जो एक्सेलरेशन दैट इज g डाउनवर्ड. तो g बाई 3 कॉमा g, दैट्स द सेकेंड ऑप्शन. इज इट क्लियर टू एवरीवन? आ गया समझ बच्चे? Yes, sir. Let's go to the fourth one. Now here basically, so here we see that equation of a state of this is this we all know is van der Waals equation, p plus a by v square v minus nb is nrt जैसे होता है. So इस expression में हमें आपको कह रहा है p represents pressure and v volume and t is the absolute temperature. A, b and r are constants. The dimension of A, we have to find the dimension of A, right? So when I say P plus A by V square, so by the principle of homogeneity of dimensions, principle of homogeneity क्या बोलता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से तभी ऐड कर सकते हो जब दोनों का डायमेंशन सेम है. ओके, सो बाय प्रिंसिपल ऑफ homogeneity of dimensions, principle of homogeneity of dimensions, हम लोग क्या बोलेंगे, two physical quantities
can be added together only if they have same dimensions. ठीक, सो उनका सेम डायमेंशन मतलब p का जो डायमेंशन है और a बाय वी स्क्वायर का डायमेंशन, दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। a बाय वी स्क्वायर का क्या मतलब हो गया, ये वॉल्यूम है, हम लोग को a का डायमेंशन निकालना, और ये प्रेशर है। प्रेशर जो होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है, राइट। तो फोर्स का m1 L1 T माइनस 2 डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर, ये प्रेशर का हो गया। ए का डायमेंशन हमें निकालना है, वॉल्यूम का डायमेंशन एल क्यूब होता है, उसका स्क्वायर है L⁻⁶ हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दोगे तो ए का जो डायमेंशन होगा ये ऊपर चला जाएगा, सो मतलब m1 L माइनस 1 T माइनस 2 इंटू L6, राइट। So this will give you m1 L5 T minus 2. This is the dimension of the constant A, m1 L5 T minus 2. Is this clear? Clear है बच्चे? फटाफट बोलते जाओ बेटा, है ना? Yes, sir. हाँ, थैंक यू। Yes. हाँ, बी इंटरैक्टिव, क्लास में इंटरैक्टिव रहेंगे ना तभी फिर फायदा होगा, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो यहीं पे रह जाएंगे। हम लोग को आगे जाना है तो क्लास में खूब इंटरैक्टिव रहना है। पूछा मैंने कि हाँ समझ में आ गया, यस सर आ गया समझ, नहीं आया तो नहीं आया समझ सर दोबारा बताइए। जितना हम लोग आपस में बातचीत करेंगे उतना आपको फायदा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है, द क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय x इज इक्वल टू, एक कोई क्वांटिटी है, ये मास लेंथ और टाइम के रेस्पेक्ट में इसका डायमेंशन क्या है, a b और c। द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ m l and t आर अल्फा परसेंट, बीटा परसेंट, गामा परसेंट। हमें पता है बच्चे कि जब पावर a रहता है ना तो इसको क्या करेंगे, जो परसेंटेज एरर है, परसेंटेज एरर जो है ए टाइम्स हो जाता है उसका, मतलब एम का परसेंटेज अगर अल्फा परसेंट है तो एम रेज टू द पावर ए का परसेंटेज क्या हो जाएगा, ए इंटू अल्फा परसेंट हो जाएगा। और परसेंटेज एरर लेंथ का कितना हो जाएगा, बी इंटू बीटा परसेंट हो जाएगा। और इसका जो डायमेंशन है मतलब पावर है उसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे सी इंटू गामा परसेंट, परसेंटेज। और बिकॉज ये पूरा मल्टीप्लीकेशन है एम एल इंटू टी, तो इनका जो परसेंटेज एरर है वो एड अप हो जाता है, ठीक है। तो ए अल्फा बी बीटा सी गामा ये हम लोग ऐड कर देंगे, इतना परसेंटेज एरर होगा। इज दिस क्लियर बच्चे? ये हम लोग परसेंटेज एरर वाला जो चैप्टर कर रहे थे उसमें ये पोर्शन हम लोगों ने किया था कि जो पावर होता है वो आके इंडिविजुअल एरर से मल्टीप्लाई हो जाता है, और जो मल्टीप्लाइड चीज है फिजिकल क्वांटिटीज जो प्रोडक्ट के फॉर्म में है उनका जो एरर है वो एडिशन के फॉर्म में आता है। इज दिस क्लियर? Next question, a block of mass m is placed on a smooth inclined wedge ABC of inclination theta as shown in the figure. The wedge is given an acceleration a towards the right. The relation between a and theta, है ना, for the block to remain stationary on the wedge. देखो ये जो क्वेश्चन है ये स्यूडो फोर्स का क्वेश्चन है। अगर ये एक्सेलरेट इधर करेगा तो इस पे स्यूडो फोर्स एक इस तरफ लगेगा, है ना, यहाँ लिखा भी हुआ है देखो, स्यूडो फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा ma। जितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है उतना इनटू मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, मास इसका m है तो ma फोर्स इधर लग गया, है ना। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, ये mg इधर लग रहा है, राइट। सो ये mg हो गया हमारा इस तरफ, है ना। अब यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन, ये इसका एक कंपोनेंट mg का इधर होगा जिसको हम लोग कहते हैं mg, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। तो ये mg साइन थीटा है और ये mg कॉस थीटा है।
और n नॉर्मल रिएक्शन जो है इसका दो कंपोनेंट हमने ले लिया, n cos थीटा और n sin थीटा। अब देखो ये समझो, ये कह रहा है कि द वेज is given an acceleration this, है ना, the relation between a and theta for the block to remain stationary। ब्लॉक को अगर स्टेशनरी रहना है, रुका हुआ रहना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ऊपर फोर्स, मतलब दोनों तरफ ये इसको बैलेंस करना चाहिए, मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन दोनों में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बैलेंस कराओगे तो n sin थीटा ma के बराबर हो जाएगा, और वर्टिकल डायरेक्शन में करोगे तो n cos थीटा mg के बराबर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग दोनों तरफ से ले सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने इसको x और y एक्सिस लिया है। अगर हम लोग इंक्लाइन के अलोंग x और y एक्सिस लेते, तब फिर हम लोग जो है mg को इधर इधर करके और स्यूडो फोर्स को हम लोग बेसिकली इसका कंपोनेंट निकालते। बट बिकॉज अब ये हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इसको लेके कर रहे हैं, तो हम लोग n का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकाल रहे हैं। अब ये n sin थीटा n cos थीटा हो गया, डिवाइड कर दो इन दोनों को, तो ये क्या मिल जाएगा तुम्हें, tan थीटा इज इक्वल टू a बाई जी हो जाएगा, और a इज इक्वल टू जी tan थीटा। तो हम लोग को a और थीटा के बीच में रिलेशन निकालना था, a इज इक्वल टू जी tan थीटा, ऑप्शन डी हो। इज दिस क्लियर बच्चे? Yes, sir. थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर रेस्पॉन्डिंग, कीप ऑन रेस्पॉन्डिंग। Now, जैसे ये है, what is the fractional error in g calculated from t is equal to 2 pi root under L by g। हम लोग इसको ना सॉल्व कर लेते हैं। t is equal to 2 pi root under L by g जो है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, t square is equal to 4 pi square L upon g। हम लोग को g पे फ्रैक्शनल एरर किसका निकालना है, g का। ठीक है, फ्रैक्शनल एरर g का निकालना है, तो g is equal to 4 pi square L upon t square। L अपॉन टी स्क्वायर है, ये ध्यान दो, लेंथ न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में t और उसका स्क्वायर है, L का पावर 1 है। जब L का पावर 1 दे रखा है, अब हमने बोला था कि t और L का जो फ्रैक्शनल एरर है क्या है, प्लस x और प्लस माइनस वाई, प्लस माइनस x और प्लस माइनस वाई। हमें g का फ्रैक्शनल एरर निकालना है। g का फ्रैक्शनल एरर क्या हो जाएगा, 1 टाइम्स डेल्टा L बाय L प्लस 2 टाइम्स डेल्टा t बाय टी। 2 टाइम्स क्यों, क्योंकि t का पावर 2 है, तो 2 टाइम्स डेल्टा t बाई टी। यहाँ पे l का पावर 1 है, तो 1 टाइम्स डेल्टा l बाई एल। प्रोडक्ट और डिवीजन दोनों में फ्रैक्शनल एरर ऐड होता है, और पावर्स उसके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पावर यहाँ 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई हो गया फ्रैक्शनल एरर ऑफ l में, और पावर t का 2 है ना, इवन दो डिनोमिनेटर में है, डिवीजन में भी बिकॉज ऐड ही करते हैं फ्रैक्शनल एरर को, तो 2 टाइम्स डेल्टा टी बाई टी हो गया। अब हमारे पास फ्रैक्शनल एरर पता चल गया, डेल्टा एल बाय डेल्टा टी बाय टी जो है प्लस माइनस एक्स हो गया, डेल्टा एल बाय एल प्लस माइनस वाई हो गया। तुम इसको अब कर लो सॉल्व, तो प्लस ये हो गया प्लस माइनस एक्स, और ये प्लस माइनस वाई, तो ये क्या हो जाएगा, y प्लस 2x हो जाएगा इसका एरर। तो y प्लस 2x ऑप्शन सी हो जाएगा। It was wrong. I did. Where did you made a mistake? Sir, in this t square, I was not taking it as t square, so I wrote it as x plus y. Oh, so you missed out the power of this. Yes, sir. So power always comes and gets multiplied with the fractional error. आगे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, 8th वाला क्वेश्चन है, a thin copper wire of length L meter increases in length by 2% when heated through 10 degree Celsius। So आप क्या कर रहे हो, ये जो L मीटर है ना, ये इंक्रीज कर रहा है 2% से, मतलब डेल्टा L बाय L इंटू 100 इज इक्वल टू 2% दे रखा है क्वेश्चन में। When heated through 10 degree Celsius, what is the percentage increase in area when a square copper sheet of length meter, ठीक है, is heated, sheet of length L मीटर होना चाहिए, is heated through 10 degree Celsius। ठीक है, तो अब आप क्या कर रहे हो, बेसिकली इसको 10 डिग्री सेल्सियस पे जब हीट कर रहे हो,
तो एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू एल स्क्वायर होता है। तो जब इस पे परसेंटेज इंक्रीज मतलब 2% इंक्रीज कर रहा है लेंथ, तो एरिया कितना इंक्रीज करेगा, 2 टाइम्स, ये जो पावर है एल का 2 है, तो 2 टाइम्स डेल्टा एल बाय एल इंटू 100। अब डेल्टा एल बाय एल इंटू 100 2 है, तो 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 4% से इंक्रीज कर जाएगा। सो ऑप्शन ए। क्लियर है बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now in this question, a rigid ball of mass m strikes a rigid wall at 60 degree and gets reflected without loss of speed as shown in the figure below. The value of impulse imparted by the wall on the ball is. So we have to find the value of impulse imparted by a wall on the ball. Okay. So impulse क्या होता है? Change in momentum, delta p. Okay. So change in momentum, delta p is impulse. I will write it. Impulse is equal to change in momentum. Change means delta represents change. So delta p, change in momentum, is impulse. P represents momentum. So this is final momentum minus initial momentum. So देखो फाइनल मोमेंटम क्या है, अगर हम लोग को निकालना है इम्पार्टेड बाय वॉल ऑन द बॉल। अब देखो यहाँ पे इम्पल्स चेंज किधर कर रहा है, इसका एक्स कंपोनेंट चेंज कर रहा है। पहले जो मोमेंटम इस डायरेक्शन में था परपेंडिकुलर टू द वॉल, सो दिस वाज एम वी कॉस 60 डिग्री, और बाद में जब रीबाउंड हुआ तब ये इधर जाने लगा एम वी कॉस 60 डिग्री से। सो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो अगर हम लोग इस डायरेक्शन को, ये वाला जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को अगर हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, तो जब आ रहा था तो नेगेटिव था। सो दिस इज एम वी कॉस 60 डिग्री, है ना, द मोमेंटम आफ्टर रीबाउंडिंग। बिफोर रीबाउंडिंग इट विल बी माइनस ऑफ minus mv cos 60 degree. Why minus? Because this direction is negative and this direction is considered positive, है ना। हम लोगों ने ऐसा माना है, तुम कुछ भी मान सकते हो। तो अब चेंज मोमेंटम का फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो mv cos 60 प्लस mv cos 60, mv cos 60 plus mv cos 60. So this is 2 mv cos 60. So this is 2 mv cos 60 is 1 by 2, ये cancel हो गया. So this is equal to mv. So impulse is equal to mv, option A. Is it clear? Yes, sir. Next, go to the next one. Now in this question, the student measured the diameter of a wire using a screw gauge which with least count 0.001 centimeter and listed the measurement. The correct measurement is, अब जब least count 0.001 है तो इसमें कम से कम 3 डेसिमल प्लेस होना चाहिए, है ना। So correct value of diameter is up to 3 decimals. Why? Because the least count is up to 3 decimal place. So तो measurement भी होगा up to 3 decimal place होना चाहिए. So option C, ये up to 3 decimal place वाला जो option है वही correct होगा. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Next one is, in the vector diagram shown in the figure where R is the resultant of vector A and B. So R is the resultant vector between vector A and B. So basically tail of A to the head of B we join, that is R is equal to A plus B. Vector R will be equal to vector A plus vector B. R is equal to B by root 2, then the value of the angle theta is. So R is equal to B by
√2. सो आप ये देखो, ये आपका r है. अब देखो ये जो है, if you see, this r will be equal to b sin theta, है ना. दिस कंपोनेंट जिधर थीटा होता है वो कॉस कंपोनेंट होता है, जिधर थीटा नहीं होता है वो साइन कंपोनेंट होता है. अगर तुम इसको सॉल्व कर लो पर ऐसे ट्रिग्नोमेट्री से भी, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस. परपेंडिकुलर आर मींस, है ना, इससे आर बाय बी हो गया साइन थीटा. अब देखो आर का वैल्यू दे रखा है यहाँ क्वेश्चन में b/√2. पुट हियर b/√2 divided by b. We have replaced r is equal to b√2, which has been given in the question. So b and b gets cancelled. Answer is 1/√2. Sin theta कब होता है 1/√2? When theta is equal to 45 degree. So Sir, yes, sir, I have to do it with the sin theta, but how could we do it by r equals to a plus b? that is the resultant ना बच्चे. Triangle law से this is vector a and this is vector b. So vector a plus vector b is equal to vector c, the third side of the triangle. Okay. है ना. दिस इज वेक्टर एडिशन से हम लोग लिख रहे हैं r इज इक्वल टू a प्लस बी. आ गया समझ. Yes, sir. 12th question, if vectors a and b are such that a plus b is equal to vector a plus b is equal to magnitude of vector a is equal to magnitude of vector b, then a minus b may be equated to. See, when vector a plus b का magnitude is equal to vector a का magnitude is equal to vector b का magnitude, इसको solve कर लो. See, vector a plus b का magnitude is equal to वेक्टर a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, 2 टाइम्स वेक्टर a का मैग्नीट्यूड, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, कॉस ऑफ एंगल थीटा रूट अंडर. ये फॉर्मूला होता है भाई, a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू a प्लस b. अब ये क्या कह रहा है कि a और b का मैग्नीट्यूड सेम है. a और b का जो मैग्नीट्यूड है ना, मान लो x के बराबर है ना, मतलब दिस ऑल थिंग इज इक्वल टू x, लेट अस से. सो x इज इक्वल टू रूट अंडर x² प्लस x², 2 टाइम्स x², a इंटू बी मैग्नीट्यूड सेम, x इंटू x² हो गया, cos थीटा. अब स्क्वायरिंग वी गेट, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो x² इज इक्वल टू 2x² प्लस 2x² cos थीटा. इसको इधर ले आओ, x² minus 2x² minus x² is equal to 2x² cos theta. x² gets cancelled. Cos theta is minus 1/2. तो थीटा कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा. नेगेटिव 1/2 है तो थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री. अब हमें एंगल पता चल गया थीटा 120 डिग्री. ठीक है. वैसे तो कभी भी जब सम ऑफ वेक्टर्स इज इक्वल टू इंडिविजुअल वेक्टर्स, देन ऑलवेज, so if say let's say we have two vectors a and b, their sum will also be equal. So let's say this is vector a and this is vector b and they are equal, so the sum a plus b, this will also be equal. The magnitude will be equal only when theta is equal to 120 degree. ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को भी यूज कर सकते हैं या फिर उसको मैथमेटिकली निकाल भी सकते हैं. थीटा 120 डिग्री हमारा निकल गया. अब कह रहा है a माइनस बी को निकालो. a माइनस बी क्या है, सो दिस इज वेक्टर a माइनस बी, तो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर a वेक्टर b कॉस ऑफ एंगल थीटा का रूट अंडर. सो दिस इज वेक्टर a माइनस, this is vector a minus vector b का magnitude, right? So now we can put again the values.
if you put x wala thing, so this is x square plus x square minus 2x square cos of 120 degree. cos 120 डिग्री माइनस 1/2 है, ये प्लस हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 1/2. सो 2 गॉन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो दिस इज 3x स्क्वायर का रूट अंडर, राइट. सो 3x स्क्वायर का अंडर मतलब रूट 3x which is root 3 into magnitude of A, because magnitude of A is equal to magnitude of B is equal to x लिया था, तो root 3 of magnitude of A option D हो जाएगा. Is it clear? Yes, sir. I didn't attempt like this, sir. Okay. Now the direction cosine of vector I plus j plus root 2k. Direction cosine जो होता है, ये फॉर्मूला होता है. डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है आप लोग को बताया था मैंने. Yes, sir. है ना. if we have a vector, let's say this. Now this vector, let's say this is x axis, y axis and z axis. So if this vector is making alpha angle with x axis, beta angle with y axis and gamma angle with z axis. So cos of alpha, cos of beta and cos of gamma, this will be the direction cosine. Okay. Cos alpha, cos beta and cos gamma. This is the difference, right? Now direction cosine of vector I plus j plus root 2k are given as, हम लोगों को निकालना है. तो अब देखो हमारा जो वेक्टर है, दिस इज I plus j plus root 2k. We know that direction cosine cos alpha is equal to ax, x component of vector divided by a. x component यहाँ पे वेक्टर का क्या है, 1i plus 1j plus root 2k. So x component means ax is equal to 1 हो जाएगा, y component ay is equal to 1 हो जाएगा और z component हमारा √2 हो जाएगा. ओके. ax ay और az जब पता चल गया तो अब हम लोग इंडिविजुअली इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. cos अल्फा इज ax by a, मतलब a का मैग्नीट्यूड अगर आप निकालते हो, दिस इज इक्वल टू रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर. मतलब a का मैग्नीट्यूड वाज रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर. So this is equal to root under 1 plus 1 plus 2 root 4 which is equal to 2. ठीक है. तो cos अल्फा क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, cos बीटा 1/2 हो जाएगा और cos गामा √2/2 हो जाएगा. Is it clear? Yes, sir. Next question is a unit vector parallel to the resultant of A and B. Resultant मतलब क्या होता है, इन दोनों का सम. वेक्टर A हमें दे रखा है 4i plus 3j plus 6k and vector B is given as minus I plus 3j minus 8k. So resultant of these two vector मतलब vector A plus vector B, इन दोनों को ऐड कर दो. 4i minus I क्या हो जाएगा, 3i हो जाएगा, 3 plus 3 6j हो गया, राइट. एंड 6 minus 8 minus 2k हो गया. So 3i plus 6j minus 2k. This is the resultant vector. Unit vector parallel to the resultant of the vector. So r cap is equal to, हम लोग को वेक्टर r divided by vector r का magnitude. So that will give you the unit vector along this. So vector r is 3i plus 6j minus 2k और इसका रिजल्ट मैग्नीट्यूड मतलब 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 9 प्लस 36 45 प्लस 4 49, रूट 49 7 हो जाता है. तो दिस बिकम्स 3/7i 6/7j
-2/7 के, ठीक है. So this is our unit vector along this, right? So 3/7, 6/7, -2/7. So this is option A. Clear है बच्चों? Yes, sir. 15 क्वेश्चन था द एंगल दैट द वेक्टर दिस मेक्स विद द वाई एक्सेस. देखो 2i + 3j है कोई एक वेक्टर, ठीक है. तो ऐसे समझो 2i + 3j का मतलब x के अलॉन्ग 2 और y के अलॉन्ग 3. इसका जो कोऑर्डिनेट होगा 2,3 हो गया और ये 0,0 हो गया. ये y एक्सेस है, ये x एक्सेस है, राइट. ये पॉइंट P है. ये OP वेक्टर 2i + 3j हो गया. अब ये हम लोगों को निकालना है मेक्स विद द वाई एक्सिस. ये एंगल हम लोग को निकालना है थीटा. ये एंगल थीटा मतलब ये भी थीटा हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अब इस थीटा के हिसाब से तुमको अगर निकालना है, अब देखो दिस डिवाइडेड बाय दिस tan थीटा. tan थीटा क्या हो जाएगा, मान लो ये Q मान लो या A मान लो. tan थीटा इज इक्वल टू OA/AP, है ना. OA मेरा दे रखा है, OA क्या दे रखा है, ये 2 है और ये 3 है. OA is 2 and this is 3. So tan theta is 2/3. Theta is equal to tan inverse 2/3. Clear है बच्चा? Yes, sir. Now, what is the component of this vector 3i plus 4j along I plus j? Component of vector A along B, इसका फॉर्मूला होता था. So I'll write it. Component of vector A along B, vector B, Yes, sir. Yes. ठीक है. This I studied in class 12th. हाँ Math. हाँ, मैथ्स में भी पढ़ा होगा और हम लोग ने किया भी था क्लास में ये. सो कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी इज ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी, ठीक है. तो ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी क्या हो जाएगा? Sir, something else also we call it. हाँ, Sorry. और बी कैप ऐसे रखेंगे. दिस इज कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी. ए डॉट बी करने से क्या हो गया, ए बी कॉस थीटा निकल गया. ए बी कॉस थीटा बाय बी क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा हो गया. ए कॉस थीटा और बी के डायरेक्शन के अलोंग होगा तो कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में, ठीक है. सो उसी को बेसिकली हम लोगों ने यूज कर लिया. अगर इसी को इस फॉर्म में लिखना है, दूसरे फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं ए डॉट बी अपॉन बी. बी कैप को हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर बी बाय बी का मैग्नीट्यूड. तो ये That's projection. हाँ, it's one and the same thing. Projection or component is one and the Yes, same sir. thing. Okay. Sir, I remembered projection, but I forgot component. Okay. So projection of vector A along vector B means component of vector A along B. It's one and the same thing. Okay. So this will give you directly use the formula and you will get the answer. So basically A dot B, जैसा कि लिखा A dot B by B का यूनिट वेक्टर, या फिर हम लोग A dot B, this is A dot B by B square and B vector. So you can use this formula also. So A dot B, when you do, we have 3i plus 4j dot of I plus j. So this is simple. 3 into 1 is 3 plus 4 into 1 is 4. 7 हो गया A dot B. और B का जो मैग्नीट्यूड है B square will give you root under
1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर मतलब 1 प्लस 1 2 हो गया, दिस इज 2. सो द रिक्वायर्ड कंपोनेंट क्या हो जाएगा, a डॉट b इज 7 बाई बी स्क्वायर, 7 बाई 2 इंटू b मतलब I प्लस j, b वेक्टर ये. सो दिस इज द कंपोनेंट 7 बाई 2 I प्लस j. ऑप्शन डी. Is it clear? अब कह रहा है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर. एंगल वेक्टर तो एंगल तो निकालने के लिए cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b बाय a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड. डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, उसी को यूज कर देना है बस, है ना. a वेक्टर दे रखा है 3i प्लस 4j प्लस 5k और b वेक्टर है 3i प्लस 4j माइनस 5k. डॉट प्रोडक्ट करोगे 3 3 9 हो गया, 4 4 16 हो गया और माइनस 25, तो ये जीरो हो गया. ये जीरो हो गया तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज जीरो ओनली. तो cos थीटा जीरो कब होगा, जब थीटा 90 डिग्री होगा. सो थीटा 90 डिग्री, ऑप्शन सी होगा. क्लियर है बच्चों? एटीन्थ वाला. Excuse me, sir. हाँ ये सर. So 9 plus 11 minus 25, how could be 0? 11 नहीं 16 हुआ था. 4 4 Okay. 16. 16. 4 and 4. Yes, sir. Okay, then it's fine. 9 plus 16. It was looking like it was 11. हाँ लिखने में वैसा हो गया होगा 16. Yes. अच्छा, वेक्टर p इज इक्वल टू ai प्लस aj प्लस 3k, q इज इक्वल टू ai माइनस 2j माइनस k are perpendicular to each other. The positive value of a is, so if they are perpendicular, that means the dot product will be equal to 0. So dot product करेंगे p dot q, a into a square हो गया, a into minus 2 minus 2a हो गया, 3 into minus 1 minus 3 हो गया, is equal to 0. a square minus 2a minus 3 is equal to 0. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व कर लेते हैं. a square minus 3a प्लस a माइनस 3 इज 0. इसको स्प्लिट कर लिया माइनस 3 और प्लस 1 में. a कॉमन ले लेंगे a माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लेंगे a माइनस 3 इज 0. So a plus 1 into a minus 3 is 0. A is equal to minus 1 or a is equal to 3. So we have to find the value. अब यहाँ minus 1 तो कहीं पे दिख नहीं रहा है, बस 3 दिख रहा है, तो ऑप्शन ए. So a can be anything, either 3 or minus 1. But ऑप्शन में बस 3 ये दिख रहा है, तो we'll mark it 3. क्लियर बच्चों? Yes, sir. 19th क्वेश्चन, ये जो तुम कल पूछ रहे थे. Yes, A sir. Yes. cross B is AB sin theta. A dot B is AB cos theta. AB cancelled. Sin theta by cos theta is tan theta is 1. So theta is pi by 4, 45. Yes, sir. I did it. Afterward. Actually, that error and measurement and vectors, I was bothering in these both sections. Otherwise, So it's only because you had done it in class 11th only, जो कि 2 साल पढ़े हुए हो गया है ना. और शुरू में तुम लोग को अभी भी जो हमने किया, तो शुरू में तुम लोग उतना ज्यादा अटेंटिव थे नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें थी, नई तरीके से पढ़ रहे हो, नए टीचर के साथ पढ़ रहे हो, तो वो एक हिच रहता है जो कि शुरू में टाइम लगता है उस चीज को ओवरकम करने में. नाउ यू गाइज आर सेटल्ड, है ना. तो लेकिन वो चैप्टर्स भी करना है, इंपॉर्टेंट है. तो पीछे के जो चैप्टर्स रहे हैं थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहा करो. मेरे सारे वीडियोस एक लाइन से तुम लोग के लिए रखा हुआ है, उसको एक एक बार सुनो तुम, है ना. जितना रिवाइज करोगे ना, एंड yes, sir. I also do one thing, sir. Yes. Sir, in physics, sir, my cousin is there in 11th, so I teach him for few of somewhat time. So I again get the concepts clear very well when I explain it.
Yes, yes, yes. So that's the best way to do it. What you can do, you can just go through the videos once again, जो कि मैंने अपलोड किए हुए हैं ना, उन वीडियोस को एक बार दोबारा देखो स्टार्ट से, पहली क्लास से. तो मैंने तो क्लास वाइज डाल रखा है तुम लोग के लिए, जिससे तुमको क्लास का पता हो कि पहली क्लास कौन सी थी, दूसरी क्या थी, तीसरी क्या थी. हमारे गूगल क्लासरूम में सारा डला हुआ है. अभी से लेके आज मेरे ख्याल से 29th क्लास हो रहा है. तो ये सारे क्लासेस एक लाइन से देखो तो पुराना भी रिवाइज हो जाएगा. Is it clear, Betsy? You also need to do this so that you can keep on revising on things, है ना? So organized way में पढ़ने से हमेशा it will be better for you and you will be able to ace all the exams which are going to come after this. और आगे की जो चैप्टर्स हैं उसमें एकदम सही से चलते रहना है. जैसे जैसे बताएं, जैसे जैसे डीपीपी मिले, जैसे जैसे प्रैक्टिस पेपर्स मिले, उसको करो. मैंने वो सारे अपलोड भी कर दिए हैं तुम लोगों के लिए, स्टडी मटेरियल भी. उनको भी खूब पढ़ो, उनसे भी खूब सारे क्वेश्चंस करो. सी, हार्ड वर्क इज नेवर टू बी सब्स्टिट्यूटेड बाय एनीथिंग. अनटिल अनलेस यू वर्क हार्ड, तब तक कोई उपाय नहीं है. Next question, B1. The vectors A and B are such that A plus B का magnitude is equal to A minus B का magnitude. Then the angle between the vectors A plus B का magnitude अगर A minus B के बराबर है, तो हम लोगों ने क्या लिख दिया, वेक्टर A plus B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर A minus B का होल स्क्वायर. इससे क्या होगा ना, स्क्वायर रूट का टर्म कट जाएगा हमारा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB cos थीटा, ये दोनों कैंसिल हो गया. इसको इधर ले आओगे मतलब 4AB cos थीटा इज 0. तो इससे cos थीटा इज 0 आ गया. cos थीटा 0 कब होगा, जब थीटा 90 डिग्री होगा. सो ऑप्शन ए, ऑप्शन 90 डिग्री. क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes. So next one is, if A cross B is equal to root 3 A dot B, then the value of A plus B is. A cross B क्या होगा, AB sin theta. root 3 A dot B मतलब root 3 into AB cos theta. AB cancelled. cos को इधर ले आओ, sin theta by cos theta is tan theta. tan theta is root 3 और theta is equal to 60 डिग्री निकल गया. अब हमें निकालना है वेक्टर A प्लस वेक्टर B. वेक्टर A प्लस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड निकालना है. तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos 60 डिग्री. cos 60 डिग्री 1 होता है, मतलब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 2 इंटू 2AB इंटू cos 60 1/2 कैंसिल हो गया. तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर रूट. तो ऑप्शन डी. Is it clear, बेटा? Excuse me, sir. Yes. So this property, like from magnitude of A cross B equals to root 3, from where does it come, this property? Which one? So this property, like you written from these two given equation, you wrote AB sin theta equals to root 3 AB cos theta. Mm-hmm. Where So, did sir, this come from? sir, because it's magnitude, A cross B's magnitude. हाँ, A क्रॉस B मैग्नीट्यूड इसीलिए लिख रखा है क्योंकि A क्रॉस B इज अ वेक्टर प्रोडक्ट. द आंसर शुड बी अ वेक्टर क्वांटिटी. सो इफ आई राइट ओनली A क्रॉस B, दिस विल बी A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड, sin theta, and there will be n cap. This n cap gives you the direction of A cross B by right hand thumb rule. So if this is A, this is B, the value of the direction of n cap will be perpendicular to both A and B. Okay.
राइट हैंड थंब रूल, ए से बी के तरफ अगर फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो जिधर थंब पॉइंट करता है वो हमारा ए क्रॉस बी होता है. अब अगर मैं लिख दूं यहाँ पे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, सो दिस मीन्स कि ये एन कैप हट जाएगा. दिस विल बी ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा. ए का मैग्नीट्यूड को हम लोग सिंपली ए भी लिख सकते हैं, बी का मैग्नीट्यूड को बी भी लिख सकते हैं, ए बी साइन थीटा. यस सर. इज इट क्लियर? Yes, sir. सी फाइंड आउट द टॉर्क. आर टॉर्क दे रखा है, क्या होता है टॉर्क? आर वेक्टर, जो पोजीशन वेक्टर क्रॉस फोर्स वेक्टर गिव्स यू द टॉर्क. सो फोर्स का जो वेक्टर है ये भी दे रखा है, पोजीशन वेक्टर ये भी दे रखा है. आर क्रॉस एफ करके टॉर्क निकालना है. मतलब बेसिकली हमें 7i प्लस 3j प्लस के का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है -3i प्लस j प्लस 5k के साथ. If I write r cross f, this is the meaning of that. So इसको हम लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेते हैं. i j k ऐसे लिखेंगे, इसके नीचे लिख लेंगे 7 3 और 1, और यहाँ -3 1 और 5. The we write the coefficient here 7 3 and 1, and here coefficient is -3 1 and 5, and then we find the determinant. So this is equal to I cap जब लिखेंगे, this is positive negative positive. जब I cap लिखेंगे तो we solve this determinant 3 into 5 into 1, 3 into 5 minus 1 into 1. Yes, sir. उसके बाद j के ऊपर नेगेटिव साइन ले लेंगे -j, and then we solve these two 7 into 5 minus 3 into 1. 7 into 5 माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया 3 into 1. और उसके बाद जब हम लोग प्लस के लेते हैं तो वी मास्क दिस एंड दिस, वी गेट 7 into 1 minus of minus 3 into 3. So this is 15 minus 1 14i, ठीक है, and 35 plus 3 38j, and 7 plus 9 16k. So this is option A. Is it clear? Yes, sir. Next question was 6 vectors A through F have the magnitude and direction indicated in the figure. Which of the following statement is true? So अब देखो सबको करके देखना पड़ेगा यहाँ पे ना ऑप्शन से. B plus E is equal to F बोला है. B हमारा यहाँ नीचे के तरफ है, E इधर है ना. ये हो गया B और ये हो गया E. तो B plus E क्या होगा, ये वेक्टर होगा. तो F तो इधर के तरफ है, तो F तो नहीं होगा. तो दिस इज रॉन्ग. Okay, this is B plus E, वेक्टर B plus वेक्टर E. अब B plus C बोल रहा है, B इधर है, C इधर है. तो देखो B plus C करोगे तो ये B plus C हो गया. ये भी नहीं है क्योंकि F का एरो ऊपर है, इसका एरो नीचे आ रहा है, तो ये दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. थर्ड वाला D plus C, D इधर हो गया और C इधर हो गया. D plus C ये हो गया, D plus C. अब D plus C ये इस डायरेक्शन में, F इधर है, तो ये भी गलत हो गया. D plus E करते हैं, ये वेक्टर D हो गया, ये वेक्टर E हो गया, ये D plus E हो गया. तो D plus E is same as F. So this option is correct. Is it clear? Triangle law of vector addition पे था. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. 24th क्वेश्चन कह रहा है
if vector this and this are function of time, then the value of t at which they are orthogonal to each other. Orthogonal का मतलब perpendicular होता है, और अगर परपेंडिकुलर होगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट दोनों वेक्टर का क्या होगा, 0 होगा, a डॉट b. तो डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया अगर वेक्टर्स का, ये एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर ये है, डॉट प्रोडक्ट 0 मतलब cos ओमेगा t इंटू cos ओमेगा t बाई 2 प्लस साइन ओमेगा t इंटू साइन ओमेगा t बाई 2, राइट. इसको हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट निकाला, इज इक्वल टू 0. अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक में एक फॉर्मूला होता है cos a इंटू cos b प्लस ऑफ sin a इंटू sin b. सो दिस इज इक्वल टू cos ऑफ a माइनस b. तो ये फॉर्मूला को ही यहाँ पे लगाया हमने, cos ऑफ ओमेगा t माइनस ओमेगा t बाई 2, और cos ओमेगा t बाई 2 इज 0. तो एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री. ओमेगा t बाई 2 इज पाई बाई 2, कट गया, t इज इक्वल टू पाई बाई ओमेगा हो गया. सो दिस इज ऑप्शन. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. 25th question is the magnitude of sum of two vectors is equal to magnitude of difference of two vectors. Same question है, देखो ये question दो बार आ गया. a प्लस b का मैग्नीट्यूड a माइनस b के मैग्नीट्यूड के बराबर. a प्लस b का मैग्नीट्यूड का ये फॉर्मूला है, a माइनस b का ये फॉर्मूला है. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दोनों तरफ कट गया. 4ab cos थीटा 0 तक cos थीटा 0 हो गया, थीटा 90 डिग्री हो गया. सेम क्वेश्चन है, एक पीछे भी सेम क्वेश्चन था. ठीक है, विल स्टॉप हियर फॉर द डे, और कल